Am I audible, beta? Yes, sir. चलो, कल कहाँ तक हुआ था बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? चलो बेटा, ओके। सो कल हम लोग ने प्रेशर का डेरिवेशन वगैरह करे थे एंड वी हैड डिफाइंड सम ऑफ द वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एज वेल एज ऑफ योर आरएमएस वेलोसिटी. So molecules can possess how many types of velocities, beta? 3 types of velocities. First one is known as of your RMS speed or RMS velocity. Okay, RMS velocity का फॉर्मूला क्या था बेटा? जल्दी से बेटा. VRMS was equals to your under root of your mean of square of all the velocities, v1 square plus v2 square plus so on up to your vn square divided by your n. Or else I can write this one as of your VRMS will be equal to how much for me? Under root of your 3 into R into capital T divided by your capital M. That means VRMS is directly proportional to your absolute temperature. That is nothing but root of your T. So this VRMS is used in the energy and pressure calculations of your gases, beta, like kinetic energy is everywhere. So you will be using these relations. It should be remembered for you for a long time of a period. Next one is about your average velocity भी हम लोग ने define किया था. So what do you mean by an average velocity? Average velocity was represented by your V bar इस तरह से, not arrow mark, it is only V bar. So V bar ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी लिखो, ये एवरेज माना जाता है. So average is V1 plus V2 plus V3 plus so on up to your Vn divided by your n part equation. इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, किसी को याद है? V average का वैल्यू, V average is equals to under root of 8 RT by pi m by your pi into capital M. Or else this one is under root of your 8 into your Boltzmann's constant capital K into T divided by pi into your small m. तो capital M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टोटल मास और मास टोटल, कुछ को भी समझ में नहीं आता. Small m is nothing but what? Mass of your each molecule. Small m is nothing but mass of your each molecule partition. एक फॉर्मूला था. इसके बाद और एक हम लोग ने डिस्कस करना था, that one is about your most probable velocity. Most probable velocity. Most probable velocity means velocity possessed by the large number of your molecules. कल का मैंने definitions इसका लिखवाया थे basically. So represented by your VMP. Represented by your VMP. Velocity which largest number of your groups will be possessed. V most probable velocity is equals to under root of your 2 into R into T divided by your कितना है बेटा? कैपिटल M. Isn't it? इसके पूरे डेरिवेशंस है बेटा, लेकिन वो इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए हम लोग पूरा इसका डेरिवेशन करते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरत नहीं है, खाली इसका रिलेशंस याद रख लो, बस काफी है. दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नाउ इफ आई एम टॉकिंग द रेंज बिटवीन देम बेटा, इसका अगर पूरा का क्या बोलते हैं रेंज लिख लो, वी ऑलवेज फाइंड दैट VRMS इज ग्रेटर देन ऑफ योर V एवरेज and V average will be greater than of your V most probable. अगर इसका रेशियो ले लो मैं बेसिकली
So this one is of your VRMS is to your V average is to your V most probable velocities will be equal to कितना आएगा बेटा? VRMS velocity in terms of this one लिखूं तो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या? What is the range of this one? VRMS is to your V average is to your V most probable. VRMS कितना है बेटा? 1:0.9:0.8. ये √3 में बोलता है, ये √3 है ना, तो √3 RT, सभी चीज √3 में लिखता हूँ मैं, RT में लिख ले रहा हूँ। ये हो गया रूट ऑफ योर RT, ये हो गया √8 और ये हो गया इन टर्म्स ऑफ RT। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √3:2, ये हो गया रूट ऑफ योर 8 पाई रूट ऑफ योर पाई, बाकी का पूरा कांस्टेंट है, इज टू योर √2। अगर मैं इसको रेशियो ले लूं तो ये बन जाएगा 1:, अंडर रूट ऑफ योर 8 into 3 पाई इज टू, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 2/3। ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3 को मैं निकाल दिया तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। सो इट इज 1:, अंडर रूट ऑफ योर 8/3 पाई इज टू अंडर रूट ऑफ योर 2/3 पार्ट रिलेशन। क्लियर है? Yes, sir. So these are the three relations which you need to remember for the examinations. One is about your RMS velocity, average velocity, and as well as of your most probable velocity और उनका relation between them. VRMS is greater than of your V average, V average is greater than of your V most probable velocity, and इसका ratio इसका still simplify कर सकते हैं. That depends upon the options how he is giving. अगर इसका और simplification भी करना है तो पाई की वैल्यू मालूम है, इसको approximate कर लो, will be getting the answer for the given conditions. ठीक है? और नेक्स्ट वन एक छोटा सा ग्राफ है इसके अंदर जिसको हम लोग को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज नथिंग बट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन ए गैस, मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन ए गैस। In a gas. Actually, Maxwell was the first scientist who has given the relation between them, beta. He told that whether the large number of gas molecules, चाहे कितने भी range हो जाए, basically, he told the speed of the molecules of the gas changes continuously because of what? Can you tell me? Speed of the gas molecules क्यों change हो रहे हैं? Because they are kept in a container and they collide with the walls of the container. So the speed of your molecules of a gas changes continuously because of the collision of this gas molecule with other molecules and with the wall of the container. They observe that because of the thermodynamical properties like pressure, volume, temperature of a gas does not change with your time, even though the velocities are continuously been changing. Then Maxwell studied this one after a very particulation, and he told that the total number of your molecules having the speed between any definite range must be constant, even though the speed of the individual molecules might be changing, but the total condition should almost all be your कांस्टेंट पार्टिकुलेशन। तो उसको उसके ने दिमाग में रख के उसने एक ग्राफ बनाया था। ये एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो इसका डेरिवेशन हम लोग डिटेल में करते हैं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ इसका ग्राफ याद रख लो, दैट्स मोर देन इनफ बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फंक्शन ऑफ योर वी। फंक्शन ऑफ योर वी मतलब क्या बेटा? फंक्शन ऑफ योर वी इज नथिंग बट ऑफ योर रिलेटिव नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स ऑन योर वाई एक्सिस। सो हियर आई एम टेकिंग योर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर relative number of molecules, number of your molecules, और यहाँ पर हम लोग स्पीड लेते हैं v। f is nothing but हम लोग ले रहे हैं, this one is your per unit range of speed, per unit range of your speed लेते हैं on y axis particulation। ओके या कभी कभी हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1 by your total number of your molecules present into your dn divided by your dv, relative total number of your molecules passing for your unit speed part of relation part। तो ये हो गया यहाँ पर y axis, और on x axis will be taking the speed। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा पाया गया हुआ है। the graph of this one was been found something like this, the graph increases exponentially, this one ऐसा होके होते हुए फिर ऐसा। तो
most probable velocity is somewhere here. That means first actually they started studying the velocities in the small range beta within the range of your v, और एक छोटा सा increase in range ले रहे हैं यहाँ पर v plus of your dv. इस रेंज के पूरे मॉलिक्यूल्स को जब स्टडी करा गया हुआ था बेसिकली फॉर योर स्मॉल नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें जो नंबर मॉलिक्यूल्स थे बेसिकली दिस वन वाज ऑफ लाइक dn, this one was of your dn molecules के लिए. It was been found that the number of molecules having the speed in the range from v to dv are in the function of your this one beta, that is dn is equals to function of your v into your dv. So after a long interval of a time they found that all the gas molecules which have been present in this region, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा थे तो इसके पास स्पीड बहुत कम थी, तो यहाँ पर आ गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पार्टिकुलेशन. उससे थोड़ी दूर पे जब जा रहे थे बेसिकली अगेन द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव बीन डिक्रीजिंग, द स्पीड ऑफ दैट वन इज आल्सो बीन चेंजिंग, दैट स्पीड वी हैव टेकन इट एज ऑफ योर v एवरेज. उसके बाद वेरी स्मॉल नंबर ऑफ योर gas molecules who have been having the very high speed, they are called as of your VRMS part. So large number of molecules were having most probable, उससे थोड़ा कम average, उससे बहुत ज्यादा कम we will be having the VRMS velocities part of relation. So this was the basic graph which you need to remember for the given condition part. यानी अगर मैं खाली एक ग्राफ ड्रॉ करूं for your number of your molecules, that is dn by your dv versus your velocity, it is found to be maxima for your what type of velocity beta? Most probable velocity, that is for your VMP. Yani most probable speed is the speed possessed by the maximum number of a molecule and it corresponds to your peak value of the distribution curve beta. And this distribution is an asymptotic, that means continuously changes with respect to your velocity part of relation. तो different condition में different parts में निकाला जा सकता है. अब ये देखो VRMS velocity अगर मैं लिख रहा हूँ, ये I can also write in terms of your small m. This will be under root of your 2 into k into t by your small m में भी लिख सकता हूँ basically. Yeah, this can also be written in terms of density under root of your 2 into p by your rho. P by rho. Isn't it? So this different forms में भी लिख सकता हूँ. तो ये ग्राफ रफली थोड़ा बहुत आप लोग याद रख लो. That's more than enough for the given condition. और एक छोटा सा इफेक्ट है. What is the effect of your temperature? तो effect of temperature कैसा होगा इसके अंदर? ये भी एक ग्राफ अपने को याद रखना है. Effect of temperature. यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है इन द गिवन कंडीशन, तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया मेरे पास dn by your n, dn by your dv, और यहाँ पर हो गया वेलोसिटी ग्राफ. तो ये हो गया फर्स्ट ग्राफ इस तरह से समथिंग लाइक दिस. दिस वन इज एट ए टेम्परेचर ऑफ your T1. Then at a temperature of your T2, again the same number of a gas molecule जब ले लिया, तो this one is something like this. This one is at your T2. As temperature increases, as temperature is been increasing, maxima is shifting in the forward direction. So आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर basically as temperature was increasing, as the temperature increases, maxima क्या हो रहा था? Maxima is shifting. Maxima shifts in forward direction. Maxima is shifting in the forward direction. A number of molecules are moving to the new most probable speed, decreasing the graph to the flattened condition. ये थोड़ा flat हो जाके decrease होते जा रहा है basically. So still the area under the curve still is equal to your n, as the total number of particles is not changing. So जो भी total number of molecules रहेंगे, that will be still remaining for me the same part of a relation. So what do you mean condition right now? As temperature increases, I can write here as temperature increases, the most probable velocity, VRMS velocity, and V average velocity increases. It also increases. As temperature increases, maxima is been shifting towards the forward direction. A number of molecules are moving to the new most probable speed. यहाँ पर इससे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पर थे, अभी टेम्परेचर कर रहे तो पूरे टेम्परेचर क्या हो गए यहाँ पर आके बेसिकली. लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज बी रिमेनिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब चेंज नहीं कर रहे ना इसके अंदर, तो खाली पीक वैल्यू जो है ना सामने बढ़ रही है बेसिकली, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? दैट इज द इफेक्ट ऑफ योर टेम्परेचर. ये ग्राफ समझ में आया? ये देखो जब आपके पास टेम्परेचर T1 था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ पर था. जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें जितने थे
तो ये ब्लू के रीजन में भी उतने ही होने चाहिए, लेकिन ये ग्राफ तो है ना स्लाइटली सामने आ रहा है, लेकिन maximum number of molecules are still possessing the same most probable velocity part of relation, but only it is shifting in the forward direction. बस उतना अपने को याद रखना है इस ग्राफ के अंदर, अगर टेम्परेचर पूछ रहा है तो बेसिकली. Now if I'm asking the effect of molecular mass, effect of your molecular mass, effect of your molecular mass on this graph. So ये हो गया यहाँ पर dn by over dv, और ये हो गया यहाँ पर वेलोसिटी, और इसका ग्राफ देखो इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए इस तरह से, और अनदर गैस के लिए देखो, और एक पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ, टेक दिस वन. तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से चेंज नहीं होंगे बेसिकली, ऐसा हो जाएगा. सो नाउ आफ्टर मी VRMS velocities, how they are proportional to their molecular masses. बेटा can anyone tell me? V most probable velocity ले लो, या V average ले लो, या VRMS ले लो, तो क्या हो रहा था? They are inversely proportional. proportional. So they are inversely proportional to square root of, inversely proportional to your square root of your molecular mass, square root of your molecular mass part of relation. यानी अगर मैं आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दूं, एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ग्राफ में कहां पर नाइट्रोजन होगा और कहां पर हाइड्रोजन होगा, कोई बता सकता है? White वाला हाइड्रोजन. व्हाइट वाला हाइड्रोजन हो जाएगा. वेरी गुड. व्हाई? मास कम है ना सर, मास तो इसका थोड़ा वेलोसिटी कम हो ज्यादा. जाएगा बेसिकली, इजंट इट? मास इज बीन इंक्रीजिंग, मास इज डिक्रीजिंग. VRMS, तो VRMS वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती सर. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन. दिस विल बी योर नाइट्रोजन. क्लियर है ना? कोई भी गैस मॉलिक्यूल दे दिया तो आप उसका ग्राफ आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं ना आराम से. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कर लिया ना आप लोग? नहीं करे सर. ओके चलो ठीक है. एक क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से. n lesser than of your 100, n molecules of a gas have velocities 1 comma 2 comma 3 comma so on up to your n kilometer per second, then the ratio of VRMS to V average is dash. चलो, number of molecules कितने हैं बेटा? lesser than 100 है. So if n molecules of a gas have the velocities 1 2 3 so on up to n kilometer per second, then what is the ratio of your VRMS? फर्स्ट कैलकुलेट करो, VRMS कैलकुलेट करो, उसके बाद V एवरेज कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उन दोनों का रेंज ले लो बेसिकली. तो पहले मैं एवरेज निकाल लेता हूं, इसका देखते हैं एवरेज कैसा निकालोगे. एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, कोई बता सकता है? V average will be equal to, can anyone help me out? It is 1 plus 2 plus 3 plus so on up to your n, so divided by your n. तो ये sum of your n natural numbers है. sum of your n natural numbers का फॉर्मूला क्या है? sum of your n natural number का फॉर्मूला है n into your n plus 1 divided by 2 into ये n as it is रहेगा. तो ये n और ये n यहाँ पर कट गया, तो ये हो जाएगा n plus 1 divided by 2. दिस इज योर V एवरेज. आया सभी को? ठीक है ना? Yes sir. उसी तरह से VRMS का फॉर्मूला, VRMS is equals to अंडर रूट ऑफ, ये हो गया मेरे पास
1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to your कितने n square n square. divided by your n. And you know that sum of your square natural numbers will be equal to how much for me? ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ यूर n into n plus 1 into this one is 2n plus 1 2 divided by your 6 times of your n. तो इसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो ये n और ये n अगर कट गया सो यू आर गेटिंग दिस वन एज ऑफ योर अंडर रूट ऑफ योर, ये नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ. सो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू योर आ रहा था मुझे अंडर रूट ऑफ योर, आई गॉट दिस वन एज ऑफ योर n प्लस ऑफ योर 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई योर 6. तो ये हो गया वी आर एम एस का वैल्यू और वी एवरेज का वैल्यू. क्लियर है? ये फॉर्मूले से आपको याद रहना, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी करवाया था. स्क्वायर ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स कैसे लिखोगे? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. सम ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स लिखना कितना होगा? n into n plus 1 divided by your 2. सिंपलीफाई कर लो, विल बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस वन. तो VRMS निकालना अभी. रेशियो ऑफ योर VRMS डिवाइडेड बाय योर V एवरेज विल बी इक्वल टू हाउ मच? यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया अंडर रूट VRMS की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर हो गया n प्लस 1 इंटू ये हो गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई योर 6 इंटू वी एवरेज की वैल्यू उल्टा करके लिख दो यहाँ पर, इट इज 2 बाई योर n प्लस 1. ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 2 बाई रूट 6 को बाहर निकालो तो ये हो गया रूट 6. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर दिस विल बिकम फॉर मी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय योर n प्लस 1. आया बेटा? yes sir. अगर इसको ये अंदर लेके जाना बता इसको स्क्वायर करना ना बेटा, ये स्क्वायर कर दिया तो ये चले जाएगा. तो आंसर आ गया 2 बाई रूट 6 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो ये हो गया VRMS डिवाइडेड बाई योर V एवरेज की वैल्यू. क्लियर है? इज इट क्लियर फॉर yes sir. एवरीवन? ठीक है, चलो. छोटा सा क्वेश्चन लिख लो बेटा और एक. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद है ना सभी को? 1 electron volt is how much beta? 9. What is the value of 1 electron volt? है कोई? कितना बेटा? 1.6 into 10 to the power of -90. -19. क्या पापा ऐसा कर दिया था? वॉइस नहीं है क्या? कोई भी आवाज नहीं आ रही किसी की भी? है सर, सब जने हैं. फिर कोई भी बात नहीं कर रहे, क्या बात है? बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे क्या नीचे रख के? हाँ, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा. कैलकुलेट the temperature at which RMS velocity of a gas molecule is same as that of a molecule of another gas at 47 degrees centigrade. Molecular weight of first and second gases
first and second gases are 64 and 32 respectively. चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका. Calculate the temperature at which the RMS velocity of the gas molecule is same as that of the molecule of the another gas at your 47 degrees centigrade. कितना है बेटा? VRMS का फॉर्मूला बताओ. VRMS is equals to under root of your 3R into capital T by your molecular weight. For two gases के लिए लिखो तो कैसे लिखोगे? For two gases, this is under root of your 3R into temperature T1 divided by your molecular weight M1 is equal to under root of your 3R into temperature T2 divided by your M2. So इसमें से ये 3R और ये रूट भी चले गया तो बचा कितना T1 by your M1 is equals to your T2 by your M2. तो खाली M2 निकालने के लिए पूछ रहा था ना, तो बताओ कितना आ रहा. T2 निकालने के लिए पूछ रहा, T1 के लिए पूछ रहा. Calculate the temperature at RMS velocity of a gas molecule is same as that of your molecule another gas, यानी T1 निकालना है. T1 कितना है? T2 दे रखा है इसने 47 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी that is 47 प्लस ऑफ योर 273, तो ये कितना हो जाएगा 320 केल्विन. तो T1 की वैल्यू कितनी है बोल के पूछ रहा हूँ, बताओ कितनी हो जाएगी. M1 एंड M2 की वैल्यू दे रखा है 64 एंड एज वेल एज ऑफ योर 32. M1 की वैल्यू 64 है, M2 की वैल्यू 32 है. 640 केल्विन आ रहा सर. So this will be your 640 Kelvin. Clear है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा. law of equipartition of energy. Equipartition of energy. Law of your equipartition of your energy. So what is this law says beta? This law states that the total energy of your gas molecule is equally distributed among all the degrees of freedom beta. यानी जितनी इंडिपेंडेंट वेज में वो एग्जिट कर सकता है वो पूरे वेज में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है. दैट लॉ इज कॉल्ड एज ऑफ योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ योर एनर्जी. सो स्टेटमेंट सेज दैट this law states that total energy of a gas molecule is equally distributed among all of its degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is equal to 1/2 K into T. K is a Boltzmann's constant. That means if I am taking a gas molecule right now, if a gas molecule has F degrees of freedom, say F degrees of your freedom, then its total energy can be given as E is equals to F से multiply करना है total energy को, half into K into your T. So that will be your energy. तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर?
E is equals to your F by 2 into your K into T. So this will be the energy of your total molecule. If a gas molecule has F degrees of freedom, तो उसे F से multiply कर लो. So total energy of a gas molecule having the n degrees of your freedom will be equal to how much? F by 2 K into your T particle relation. If the gas molecule is having, say for example, for n moles of a gas, for n moles of your gas having F degrees of freedom, total energy of gas can be given as E is equals to F by 2 into K into T into N into your Avogadro number. Yani the total internal energy of any gas molecule can be given by the relation. यानी इसको हम लोग लिखते हैं energy of gas को कभी कभी U से भी represent कर देंगे. So this U is known as of a total internal energy of a gas, that is equals to your F by 2 into N into your R into your capital T. Or else this can also be written as of your F by 2 into your N into RT can be also written as of your P into your V part of relation. So what is a U representing here, beta? Internal energy of your gas molecule. U is nothing but right now here total internal energy of a gas. Internal energy of your gas. ठीक है. So total internal energy of your gas part of a relation. तो यहाँ पर अपने को 2-3 formulas आ गए which are very very important. So what do you mean by your law of your equipartition energy? This law states that the total energy of any gas molecule is equally distributed among all the degrees of freedom, and energy associated with each degrees of freedom is equal to how much, beta? 1 by 2 times of K into T. If a gas molecule is having F degrees of freedom, तो उसको F से multiply कर लो. That will be giving the answer as F by 2 K into your T part of relation. अगर मैं n moles के लिए बात कर रहा हूँ, for n moles of a gas having F degrees of a freedom, so E will be equal to how much, beta? E will be equal to your N by 2 into K into T into N into your A part of relation. Clear है? Or else this can also be written as of your U is equals to F by 2 N into RT part of relation. N into RT is nothing but PV, so it is P part of relation. So U represents me the total energy of your any gas molecules part of relation. Is that clear for everyone? Is that clear? Very very important relations बेटा. ये कंपलसरी याद रखना क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पूरा इसी पे रिवॉल्व होते रहेगा बेसिकली. सो बी लिटिल बिट केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मुलेस. ओके चलो टेक द नेक्स्ट हेडिंग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंटेड बाय लेटर F. कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? क्या बात है, आज कोई रिस्पांस नहीं दे रही. rotational or translational energies है of सभी लोग gases. ऑनलाइन नहीं जाना बैठे हैं अभी 17 है. वहां पर कितने बने? मुनाम, साजिद, Yes sir. फारूक, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लास सुन रहे क्लास सुन रहे सर. पक्का? जुमे के दिन भी झूठ मत बोलो यार तुम लोग. सर झूठ नहीं बोल रहे सर. एक जुमे को तो भी छोड़ा यार कम से कम. अब सही बोलो. सर खोला देखिए माइक, आप देखिए. देखे सर हम
जबरदस्ती बड़े सरकार है, देखो एक एक जने। ठीक है चलो, वॉइस से बेटे सर। ठीक है चलो बेटा, डिग्रीज ऑफ सर फ्रीडम लिख लो बेटा। वो आवाज बहुत रिसाउंड हो रही सर, इसीलिए वो लोग मतलब बोल नहीं सक रहे। या ठीक है चलो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा डेफिनेशन लिख लो। द maximum possible number of ways used to express the total energy of gas system are called degrees of freedom, are called as what? Degrees of freedom. Maximum possible number of ways used to express the total energy of your gas system, isn't it? Degrees of freedom of a gas may be due to the translatory, due to the rotatory oscillatory motions, or also due to the vibrational motions also better. That depends upon the given condition. So I can say that the maximum possible number of ways used to express the total energy of a gas system is called as of your degrees of your freedom. बताओ अब इन काइनेमेटिक्स अपने को कितने लीनियर डायमेंशंस पॉसिबल हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, x, y and as well as of your z वेक्टर्स में अगर लिख रहा हूं तो मैं बेसिकली, सो आई कैन राइट हियर राइट नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of a gas may be due to number one translatory, due to translatory motion वो x axis हो सकता है, y axis हो सकता है, z axis हो सकता है, and number two rotatory motion, that is also rotatory motion, moment of inertia along x axis, moment of inertia along y axis, moment of inertia along your z axis part of relation, and also the oscillatory motion, which is generally neglected. Oscillatory motion is generally neglected for the given condition. अगर vibration include कर रहा है तो vibration आप निकाल सकते हो basically. So depending upon the translatory motion यानी x axis में कितना, y axis में कितना, z axis में कितना, we can do on the given condition. If I am talking about your monoatomic gas, first one is monoatomic gas. मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं बताओ बेटा जल्दी से. व्हाट आर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ ए फ्रीडम ए मोनोएटॉमिक गैस कैन एग्जिस्ट? कैन यू गिव मी एनी बेस्ट एग्जांपल फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस बेटा? हीलियम. या हीलियम, आर्गन, नियॉन, all ideal gases. Can I take this all better? Isn't it? Yes sir. हीलियम भी ले सकते हैं, नियॉन भी ले सकते हैं, आर्गन, नियॉन तो ऑलरेडी लिख चुका हूं ना. ओके, आइडियल गैसेस, दिस आर ऑल एग्जांपल्स फॉर योर व्हाट? मोनोएटॉमिक गैसेस. मोनोएटॉमिक गैसेस में अगर मैं ले रहा हूं बेसिकली एक मॉलिक्यूल अगर ले रहा हूं, देखो डायग्राम देखो इसका, यहां पर समझने की कोशिश करो. एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो क्या ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में जाने की ताकत रखता है और वाई एक्सिस में भी जाने की ताकत रखेगा, साइमल्टेनियसली जेड एक्सिस में भी जाने की ताकत रखेगा. That means it can go either in x axis, it can go either in y axis, or it can go along your z axis. तो इसके पास कितनी ताकत है? एक तो 3 x axis में जा सकता है, y axis में जा सकता है या z axis में जा सकता है. तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितने बन जाएंगे? 3. ट्रांसलेशनल हो जाएगा इसके लिए, ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? 3. ये रोटेशन नहीं हो सकता है इसमें, so there is no rotation for monoatomic gas. रोटेशन हो गए 0. तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें कितने हैं बेटा? 3. नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 3 पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर फॉर एवरीवन?
Yes, Chalo. sir. Yes, sir. Next one is about your diatomic gas. Next one is about your diatomic gas. Di itself indicating 2. The best examples for the diatomic gas, I can take N2, H2, O2, Cl2, go on like that, isn't it? A number of your gases right now. So all the diatomic gases if I am taking right now, so diatomic gases का देखो एक बार रोल क्या होता है. ये एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ तक ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है. मान के चलो O2 ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली. तो इसके ऊपर जो है ना बेसिकली देखो अब इसका एक्सेस कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस मॉलिक्यूल कैन मूव अलोंग योर एक्स एक्सिस लाइक दिस, can move along your y axis, can also move along your z axis. यानी ये इस पे इस तरह से रोटेट हो सकता है, ये इस पे इस तरह से रोटेट हो सकता है, and it can move along this molecule in this direction. So ये मॉलिक्यूल ऐसा जा सकता है, ये मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट हो सकता है, या ये मॉलिक्यूल ऐसा भी रोटेट हो सकता है बेसिकली. सो इट इज हैविंग अगेन हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा? 3. तो ट्रांसलेशन रहेंगे, उसके साथ 2 रोटेशन भी आ रहे हैं, तो अपने आप पे रोटेट भी हो रहे हैं बेसिकली. तो ट्रांसलेशन कितने हो गए यहाँ पर? ट्रांसलेशनल हो गए कंपल्सरीली 3 हो जाएंगे, और रोटेशन यहाँ पर हो गए, इसके लिए रोटेशनल हो गए यहाँ पर 2. तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस वन इज हाउ मच फॉर मी? योर 5. टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस इज नथिंग बट ऑफ योर 5 पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है? थर्ड वन. Yes, sir. Third one is your triatomic. Triatomic gas. Triatomic gas. Example बेटा triatomic gas का कोई भी बेस्ट एग्जाम्पल. CO2, N2O, C2H2, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिख ही दिया मैंने बेसिकली. अमोनिया NH3. That all I can take a lot number of your molecules right now. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिखता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड वो और यहाँ पर डबल बॉन्ड वो, हुआ कि नहीं हुआ? इसको अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख रहा हूं बेसिकली, इट विल बी रोटेटिंग अलोंग योर y एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, एंड इट विल बी रोटेटिंग अलोंग योर z एक्सिस लाइक दिस, एंड इज आल्सो रोटेटिंग अलोंग योर x एक्सिस लाइक दिस. तो एक तो रोटेट हो जाएगा अलोंग योर y एक्सिस इस तरह से, और अलोंग योर z एक्सिस इस तरह से, एंड अलोंग x एक्सिस. यानी नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो जाएंगे बेटा? ट्रांसलेशन 3 रहेंगे, रोटेशन फिर से यहाँ पर 2 रहेंगे कि 3 रहेंगे? 3 भी 3 भी हो सकता है अगर इफ इट इज द वाइब्रेशन इज बीन इंक्लूडेड राइट नाउ, इजंट इट? ट्राइएटॉमिक मैं लीनियर लेके चल रहा हूं, मान के चलो ट्राइएटॉमिक एंड लीनियर मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं. ट्राइएटॉमिक एंड लीनियर रहेंगे तो रोटेशन कितने रहेंगे? 2. ठीक है ना? तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बन जाएंगे? 5. इसी के अंदर ही मैं नॉन लीनियर लिख रहा हूं मैं. इफ आई एम टेकिंग योर नॉन लीनियर, देन ट्रांसलेशन बनेंगे 3, रोटेशन विल बी आल्सो 3, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बिकम फॉर मी 6. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर भी बोल सकते हैं, या वी कैन से योर पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं. पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं. इसके लिए एग्जांपल बताओ बेटा, कोई एग्जांपल बता सकता है नॉन लीनियर विच इज ए पॉलीएटॉमिक राइट नाउ? H2O, NH3, ammonia and CH4. These are no doubt triatomic gases, but they are non-linear. I mean to say polyatomic gases part of relation. तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास कितने आ गए? 6 आ गए. क्लियर है? ये देखो कैसा होता है, मैं इसको डायग्राम बता देता हूँ. एक रफली डायग्राम देखो, ये केमिस्ट्री टीचर्स अब बेटर बता सकते हैं मेरे से तो भी, बट स्टिल मैं रफली मेरा जो आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर है ये 3 कोऑर्डिनेट्स, जितना नॉलेज मेरे को है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब इस तरह से 3. तो यहाँ पर हो गया एक बॉन्ड कर दो, इसका एक बॉन्ड कर दो, इसका एक बॉन्ड कर दो. तो ये इस पे रोटेट करेगा इस तरह से, ये इस पे रोटेट करेगा इस पे, ये इस पे रोटेट करेगा इस तरह से, ये इस पे रोटेट करेगा इस तरह से.
ठीक है ना बेटा, हर चीज पे रोटेट कर सकता है ना। पर देखो इस पे आप रोटेट करा सकते हो, इस पे रोटेट करा सकते हो, इस पे रोटेट करा सकते हो। सो दैट इज द रीजन वी आर हैविंग योर 6 डिग्रीज ऑफ योर फ्रीडम्स फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है ना। यस सर। एक छोटा सा पॉइंट डाल लो यहाँ पर पॉइंट के लिए। एट हाई टेम्परेचर a diatomic molecule has 7 degrees of freedom beta, 7 degrees of your freedom. Generally पूछता नहीं but still आप लोग लिख लो. This will be because of your 3 translational, 2 rotational and 2 vibrational. Vibrational भी include होता है कभी कभी. तो this is possible only at very high temperatures. Very high temperatures के पास 3 translational, 2 rotational and 2 vibrational molecules रह जाएंगे इसके. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay, so by this we have been completed your kinetic theory of your gases with a given condition. इस पे अभी हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. That will help you out for the given condition. ठीक है. Yes, sir. चलो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट डालो यहाँ पर. For polyatomic gases, for polyatomic gas molecules के लिए लीनियर और नॉन लीनियर में एफ ट्रांसलेशन कितने थे बेटा? 3 थे. एफ रोटेशन कितने थे यहाँ पर? 2 थे. तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बन गए थे मेरे पास? 5. इफ वाइब्रेशन भी प्रेजेंट है, वाइब्रेशन भी प्रेजेंट है मान के चलो x, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे यहाँ पर कितने? 5 प्लस ऑफ योर x. ठीक है. नॉन लीनियर में रोटेशन ट्रांसलेशन कितने थे? 3. रोटेशनल कितने थे? 3. तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बने कितने? 6. वाइब्रेशन भी इंक्लूड है मान के चलो, मुझे पता नहीं, अगर वो x है तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके बनेंगे 6 प्लस ऑफ योर x. क्लियर है? यस सर. चलो छोटा सा क्वेश्चन लिखो बेटा यहाँ पर. 15 grams of nitrogen N2 is enclosed in a vessel, at a temperature T is equals to 300 Kelvin. Find the amount of heat required. Find the amount of heat required to double the RMS velocity, of these molecules. चलो कोई कर सकता है क्या? देखो आरएमएस वेलोसिटी इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है. वीआरएमएस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है मेरे पास? अंडर रूट ऑफ योर 3 into r into capital T divided by capital M. तो VRMS is directly proportional to absolute temperature, that is root T. For doubling the temperature, यानी अगर मेरे पास टेम्परेचर T है, अगर इसको डबल करा तो कितना बन जाएगा बेटा? 4T बनेगा. इतना ही ना बेटा, रूट है ना बेटा, ये 4T बनेगा. 40 मतलब टेम्परेचर कितना बनेगा? ऑलरेडी टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. तो ये बन जाएगा 1200 केल्विन. सो इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी इसके पास? इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू F/2 into N into R into T, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो कौन सा है? नाइट्रोजन है, N2 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? 5. 5/2 into N into R into T. क्लियर है?
फाइनल एनर्जी कितनी रह जाएगी? F2 is equals to your F2 U final is equals to F by 2 into N into R. टेम्परेचर बनेगा 4 times of your T. नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? N2 में 5, that is 5 by 2 N into your R into your 4 into your T. ठीक है ना? तो पूछ रहा है क्या? हीट रिक्वायर्ड. हीट रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे? डेल्टा Q is equals to your U final minus of U initial. यूनिश तो U फाइनल कितना है? 5 by 2 nRT 4T minus 5 by 2 nR into your T. तो कितना बन जाएगा? 5 by 2 nR 4T minus T. तो ये बन गया 3T. 3T तो इसका आंसर कितना बनेगा अभी देखो राइट नाउ. तो ये हो गया मेरे पास 5 by 2 into नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया? नंबर ऑफ मोल्स कोई बता सकता है कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? 15 by 28 होता है ना. नंबर ऑफ मोल्स N is equals to mass by molecular weight 15 by over 28 into R की तो वैल्यू हम लोग को मालूम है, that is nothing but of your 8.314 into 3 into टेम्परेचर कितना दे रखा है आपने को? 300 केल्विन. इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी एनर्जी निकल जाएगी. क्लियर है? यस सर. Isn't it? कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना. अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे तो कैसा करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डाटा दे रखा है. देखो एक तो अपने को डायनामिक गैस दे रखा है, एन नहीं दिया, तो वी नीड टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. आरएमएस वेलोसिटी का वैल्यू निकाला और पूछ रहा कितना स्मार्टली, अमाउंट ऑफ योर हीट रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू योर यू फाइनल माइनस ऑफ योर यू इनिशियल. इनिशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल तो हम लोग को मालूम है, तो फ्रॉम दैट वन नॉलेज वी आर ट्राइंग टू गेट आउट द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो वेरी गुड. और एक छोटा सा हेडिंग लिख लो बेटा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर गैसियस मिक्सचर. फॉर गैसियस मिक्सचर. ये पूरे मैं एक्चुअली और डिटेयली थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करूंगा बेटा. जब मंडे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विथ योर थर्मोडायनेमिक्स ऑन मंडे. सो उसके अंदर हम लोग फिर से ये पूरे इन डिटेल में करेंगे विद द स्पेसिफिक हीट्स वगैरह बेसिकली. तो अब यहाँ पर देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द गैसियस स्टेट. अगर एन गैसेस के लिए मान के चलो, बेसिकली फॉर एन गैसेस आर बीन मिक्स्ड and there is no heat exchange taking place beta. When some substances are mixing at same temperature and no heat exchange has been taking place, so वो condition लेके चल रहा हूं मैं. when substances are mixed, when substances are mixed at same temperature, at the same temperature, और मान के चल रहा हूं no heat exchange and there is no heat exchange to the surrounding. तो if n gas molecules ले लो, if n gases are mixed, if n gases are mixed, इस n gases के लिए degrees of freedom मान के चलो F1 है, F2, F3 so on like this, okay, up to your Fn. और moles, number of moles मान के चलो N1, N2, N3 so on up to your Nn. all these are mixed, all these are mixed. इन दोनों को हम लोग ने मिक्स कर दिया. n gases are been mixed. n gases के number of degrees of freedom क्या है एक एक का? F1, F2, F3 so on Fn. number of moles N1, M2, N3 so on are been mixed right now. if F equivalent is your number of your particulation, अगर मैं सबको कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा? सेम रहेगा. तो ये कहां गया यार? या सबको मिक्स कर रहा हूं. if F equivalent is the equivalent number of degrees of freedom for molecules of mixture, then internal energy
of mixture, then internal energy of mixture at temperature capital T is, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा F equivalent divided by your 2 into number of moles N1 plus N2 plus so on up to Nn into R into capital T will be equal to F1 by 2 N1, this one is your N1 R into T plus F2 by 2 N2 R into your T plus so on up to Fn divided by 2 N R into your capital T. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, देखो इसके अंदर ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये भी 2 यहाँ पर, ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया। उसके साथ और कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, RT कट जाएगा, ये RT कट जाएगा, ये RT कट जाएगा, ये RT भी कट जाएगा। तो बचा कितना मेरे पास, F इक्विवेलेंट into N1 plus N2 plus so on up to Nn will be equal to your F1 N1 plus F2 N2 plus so on up to your Fn Nn, ठीक है ना। तो F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना बन गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ योर इक्विवेलेंट और मिक्सचर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी, तो इसका फॉर्मूला हो गया F1 N1 प्लस ऑफ योर F2 N2 प्लस सो ऑन अप टू योर Fn Nn डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ योर N2 प्लस ऑफ योर N3 प्लस सो ऑन अप टू योर Nn। तो ये हो गया F degrees of freedom for your mixture of your gases. Very very important formula beta, very important formula for the NEET examination. Degrees of freedom for the mixture of gases अगर लिख रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, F1 N1 plus F2 N2 so on up to your Fn Nn divided by N1 plus N2 plus N3 plus so on up to your Nn given for the given temperature. अगर temperature different रहा तो जब कैसे लिखोगे, mixing of the gases at your different temperatures, तो जब क्या हो जाएगा, okay, so degrees of freedom for the gases mixture कितना है बेटा फॉर्मूला, F equivalent is equals to your F1 N1 plus F2 N2 plus so on Fn Nn divided by your N1 plus N2 plus so on up to your Nn part of relation. Clear है सभी को? Yes sir. चलो नेक्स्ट वन देख लो, छोटा सा, इसको फुल स्टॉप कर दे रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं जोड़ा ले रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस at different temperatures, okay, so we are talking about your mixing of gases at your different temperatures, okay। मेरे पास n gases है मान के चलो, if I am talking about your n gases, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा F1, उसके बाद F2, उसके बाद F3 सो ऑन जाके हो जाएगा Fn तक, और उसके साथ कितने मोल्स होंगे, ये हो सकते हैं N1, N2, N3, सो ऑन अप टू योर Nn, और कितने टेम्परेचर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर फॉर n नंबर बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टेम्परेचर T1, T2, T3, सो ऑन अप टू योर Tn। all these are mixed, all these n gases are mixed। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, एक फाइनल टेम्परेचर आएगा, if final equivalent temperature is TF मान के चल रहा हूं, and vessel is thermally insulated, total energy of all gases will remain conserved, total energy of all gases will remain conserved, मतलब मिक्स करने के बाद गैसेस की एनर्जी लॉस नहीं हो रही, दे विल गेट जस्ट इंटरचेंज, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल फाइनल एनर्जी, इतना ही होगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी मेरे पास, ये था if नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F1/2 N1 R into your T1 plus this one is your F2/2 N2 R into your T2 plus so on up to your, ये हो जाएगा Fn divided by 2 N R into your Tn, ये इज इक्वल होगा तो U फाइनल के बराबर, U फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, U फाइनल बताओ कोई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1/2 N into your, that is nothing but of your N1 R into T final plus of your F2 divided by 2 N2 into your R into T final plus 1 up to your Fn/2 N into your N R into your T final। अगर दोनों को इक्वेट करो तो क्या क्या कट हो सकते हैं, देखो इन दोनों के अंदर एवरीवेयर आर तो कट हो जाएगा, ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर और ये आर भी कट हो गए, खाली एक आर ही कट हो जाएगा। तो टी फाइनल निकालना, इसमें तो जगह था पूरा टी फाइनल कॉमन है ना, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो F1/2 N1 into T1 प्लस ऑफ योर F2/2 N2 into your T2 प्लस ऑफ योर सो ऑन अप टू योर Fn डिवाइडेड बाई 2 N into your Tn is equals to, इसके अंदर क्या टी फाइनल कॉमन होगा, तो ये हो गया F1/2 N1 प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा, 2 भी चले जाएगा ना एवरीवेयर, तो 2 भी चले जाएगा, बाद में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा F2/2 N2 प्लस सो ऑन अप टू योर Fn डिवाइडेड बाई 2 दिस इज N into your, ये पूरा टी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 भी कॉमन है, 2 भी कट जाएगा एवरीवेयर, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा। तो टी फाइनल कितना आ रहा है देखो एक बार, तो टी फाइनल आ गया, टी फाइनल इज इक्वल, ये निकाल रहा हूँ ना बेटा मैं, टी फाइनल इज इक्वल्स टू, ये हो गया यहाँ पर F1 N1 T1 प्लस ऑफ योर F2 N2 T2 प्लस 1 अप टू योर Fn N into temperature of your N, isn't it, divided by ये हो गया F1 N1 plus of your F2 N2 plus 1 up to your Fn into your Nn। तो ये हो गया मेरा final temperature when n number of gases are being mixed with your degrees of your freedom partition। 2 gases के लिए 2 होगा, 3 gases के लिए 3 होगा, 4 gases के लिए 4 होगा, depending upon that one you can go and take and simplify the relations। clear है? Yes, sir. Yes, sir. By this we have been completed. Today I'll try to send you some assignment, or tomorrow in the class we'll try to do some questions। लास्ट ईयर के थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, लास्ट 3-4 साल में काइनेटिक थियरी ऑफ क्वेश्चंस में कैसा क्वेश्चंस थे वो कल एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देन विल ट्राई टू डू सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। ओके, Okay, sir. बाय। Thank you, sir.